Jai Hind everyone. Welcome back to this online lecture. I welcome all the class 9 students here. We were seeing the Beehive book of class 9 and we have seen the first chapter, the fun they had. The story was very interesting and so is this poem. So secondly, we have to go through this poem, The Road Not Taken, and it is written by Robert Frost. Before getting into the chapter, let's see something about the poet. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. By 1920, he was the most celebrated poet in America. His poetical works, like A Boy's Will, it was written in 1913, North of Boston, 1914, New Hemisphere, 1923, A Further Range, 1936, Steeple Bush, 1947, In the Clearing, 1962. All this work of Robert Frost increased his fame and honor. The Road Not Taken is a well-known poem by Robert Frost which was published in 1916 as the first poem in the collection The Mountain Interval. So this poem is taken from the collection Mountain Interval. See, this is your poet Robert Frost. He is very well-known poet. Before getting into the poem again, we will see the introduction of the poem. The poem is something like this: The Road Not Taken. Let us read it once. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. This is the poem. It is a narrative poem. The poet is narrating, and it is a kind of conversation. It reads naturally or conversationally and begins as a kind of photographic depiction of a quiet moment in the woods. तो ये एक फोटोग्राफिक डिपिक्शन है. डिपिक्ट करना मतलब बताना. कैसे बता रहा है? एक फोटोग्राफिक वे में बता रहा है. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. यू कैन इमेजिन कि दो रोड डाइवर्ज हुए थे, अलग अलग हुए थे एक येलो वुड में. वुड मीन्स फॉरेस्ट. तो एक क्वाइट मोमेंट है वुड्स में, फॉरेस्ट में, और ये एक नैरेटिव पोएम है और ये फोटोग्राफिक वे में इसको डिपिक्ट किया गया है. इसमें 4 stanzas हैं. You can see there are 4 stanzas and each stanza has 5 lines. The first line rhymes with the third and fourth. See, would, stood and could. So the first line rhymes with the third and fourth, and the second and the fifth line are rhyming. So the rhyme scheme is A, B, A, B. Again for the second stanza you can see fair, where and there. So second stanza you can see fair, where and there are rhyming. Again first, third and fourth, and second and fifth are rhyming. So the rhyme scheme of this poem as a whole is A, B, A, B. For those who don't know what rhyme scheme is, I would like to tell you, जिनको नहीं पता है rhyme scheme क्या होती है, एक बारी बता देना चाहती हूँ. rhyme scheme जैसे हमने बच्चों ने poem पढ़ी थी Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are. तो स्टार और आर राइमिंग है. उसके बाद अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. तो हाई और स्काई भी राइमिंग है. तो लाइन जो पोएम की लाइन्स हैं स्टैंजा की, उसका जो आखिरी वर्ड है वो राइमिंग होता है. जैसे स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो स्टार और आर क्योंकि राइमिंग है तो इन दोनों लाइन्स के लिए एक सेम अल्फ़ाबेट यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट ए, तो दोनों लाइन्स के लिए ए यूज़ होगा. फिर नेक्स्ट 2 लाइन राइमिंग है पर पहले वाले से राइमिंग नहीं है, तो उसके लिए एक अलग अल्फ़ाबेट यूज़ होगा. लेट्स टेक इट एज बी. तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ए, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, ये अलग हो गया. तो बी, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो हाई और स्काई मिल रहा है, सेम है, तो बी फिर से. तो ए बी बी.
सो ये होता है राइम स्कीम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये पोएम बहुत स्पेशल है। दिस पोएम इज़ सो वेरी स्पेशल। वाई? बिकॉज दिस पोएम नॉट ओनली टेल्स, ये सिर्फ ये नहीं बताती है कि दो रोड हैं और वो दो रोड जा रहे हैं। इट tells how decision people have to make decisions in their life, and they will get a lot of doubts while making decision whether it's right or not, but they have to choose one path. So this is the central idea of the poem. The road not taken deals with the dilemmas that man faces in life. road not taken क्या है, किससे डील करता है? वो dilemmas, वो जो problems है, वो जो thoughts हैं, जो human man जो है वो life में face करता है। The two roads serve as metaphor for the choices we make in life. ये जो दो रोड बार बार बताई जा रही हैं, ये क्या है? It serves as a metaphor. Metaphor मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है। किससे? रोड किससे कंपेयर की जा रही है? For the choices that we make in life. Life throws up many alternatives. लाइफ बहुत सारे ऑप्शन देती है आपको। मैन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक अप ऑल द चॉइसेस, क्योंकि हम सिर्फ एक हैं तो हम सारी चॉइसेस तो ले नहीं सकते हैं। दस we have to make choices. The choice we make has a far reaching consequence. और एक फैसला जो हम लेते हैं वो उसका जो consequence, उसका जो result है वो बहुत दूर तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं उसके बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो एक हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे एक डिसीजन दूसरे डिसीजन तक पहुंचाता है। तो एक डिसीजन जो है वो बहुत दूर तक जाता है, इसलिए हमें सोच समझ के फैसले लेने होते हैं। हैंस आवर डिसीजन इज़ अ शॉट इन द डार्क दो आवर फ्यूचर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। सो एक डिसीजन क्या है? एक अंधेरे में तीर मारने जैसा है, जबकि हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है। फिर भी हम क्या करते हैं, जैसे एक अंधेरे में तीर मारना है वैसे एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं और उस जगह आगे बढ़ने लगते हैं। इफ़ द चॉइस मेड बाय अस हैपन्स टू बी नॉट करेक्ट, सोचिए अगर जो चॉइस आप डिसीजन लेते हैं, जो डिसाइड करते हैं, वो नहीं सही हुई तो क्या होगा? वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एट स्टेप्स वंस टेकन कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। और फिर हमें जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी रिज़ल्ट है, उसको फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन एक बार ले लिया जाता है वो रिट्रैक्ट नहीं हो सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। टाइटल जस्टिफिकेशन, टाइटल बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। क्यों? जो रोड है वो एक सिंबल है, किसका सिंबल है? चॉइस का सिंबल है। कैसे ह्यूमन बींग्स को अपनी लाइफ में जो है चॉइस लेनी पड़ती है। मेनी अ टाइम्स वी रिग्रेट द चॉइस मेड बाय अस, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। क्योंकि जो एक बार कर लिया गया, जो भी फैसला ले लिया गया है, वो दोबारा से उसको वापस में पास्ट में जाके हम इरेज नहीं कर सकते हैं। तो हमें कई बार रिग्रेट करना पड़ता है, अफसोस फील होता है, बट वी कांट डू एनीथिंग। Man yearns for what he has denied himself in life rather than what he has chosen. और फिर हम दुखी होते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्यों हमने वो वाला फ़ैसला नहीं लिया, क्यों हमने उसे ठुकरा दिया, क्यों डिनाई कर दिया, और क्या हमने चूज़ कर लिया। Hence the poem has been given this title. हमेशा हम जो भी फ़ैसला लेते हैं हम सोचते हैं शायद हम दूसरा वाला लेते तो कुछ बेटर होता। तो इसीलिए पोएम का नाम जो है द रोड नॉट टेकन रखा गया, क्योंकि हमेशा हम अपनी ह्यूमन लाइफ में क्या सोचते हैं, उस बारे में सोचते हैं जो हमने नहीं किया, कि काश हमने वो रोड लिया होता, काश हमने वो डिसीजन लिया होता, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, भले से ही वो अच्छी होती या बुरी होती, बट स्टिल वी थिंक दैट। तो टाइटल टोटली जस्टिफाइड है, क्योंकि रोड एक सिंबल है वो चॉइसेस का। तो हम हमेशा सोचते हैं कि वो चॉइस क्यों नहीं हमने ली। तो ये भी वही है, द रोड नॉट टेकन। नाउ लेट्स सी द पोएम। ये पोएम जो है, जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, वो एक फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और इस समय कौन सा सीज़न है? ऑटम का सीज़न है, जब लीव्स क्या होती हैं, पेड़ से गिरती हैं। अब ये फॉरेस्ट में एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे जो रोड है वो 2 पाथ में डिवाइडेड है, और स्पीकर जो है उसको डिसाइड करना है कि कौन सा रोड लिया जाए आगे बढ़ने के लिए। जो डिसीजन था वो इजी नहीं था। ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो विश कर रहे थे, ये सोच रहे थे, वो एग्जामिन कर रहे थे कि कौन सा रोड लिया जाए और कौन सा नहीं। तो वो रोड देखते हैं, और कहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक वो रोड बेंड हो गया था अंडरग्रोथ में, जो बहुत सारी घास थी
उसकी वजह से आगे नहीं दिख रहा था, अब रोड बेंट हो गया था, वहाँ तक ये देखते हैं. सो दिस द फर्स्ट स्टैंजा. लेट्स सी. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. एक येलो वुड था. येलो वुड क्यों? क्योंकि ये सीज़न था, फॉलिंग सीज़न था. जो फॉरेस्ट था वो क्योंकि लीव्स ड्राई होकर गिर रही थी तो येलोइश दिख रहा था. और जो दो रोड जहाँ पे वो पहुँच गए थे, वहाँ से जो दो रोड थे वो डाइवर्ज हो रहे थे. डाइवर्ज मीन्स अलग होना, अलग हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे. सी एज यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड द पोएट इज़ फीलिंग सॉरी एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और वो बहुत दुखी हैं कि काश मैं दोनों रास्ते ले सकता और जाकर देख कर आकर फिर इस पे जाकर देखता. पर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. लाइफ में आप एक बार एक पाथ पे बढ़ गए हैं आगे, यू हैव टू ट्रैवल ऑन दैट पाथ. You can't reverse your life back to class 10th or 11th and correct everything and go. So that is why it is said, work hard, study. क्योंकि जो फैसला आप अभी ले रहे हैं, जो अभी आपके साथ हो रहा है, वो वापस पास्ट में आके आप सही नहीं कर सकते. जस्ट हैव टू मूव ऑन विद दिस रॉन्ग थिंग्स. सो पोएट इज़ ऑल्सो फीलिंग सॉरी. आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट ट्रैवल बोथ. ही इज़ फीलिंग सॉरी एंड बी वन ट्रैवलर. और क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल होता है, एक होता है, इंडिविजुअल होता है, तो वो भी सिर्फ एक थे और एक ही रास्ते पे ट्रैवल कर सकते थे. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड सी. आई कुड. सो इज टेलिंग कि आई स्टूड देयर एंड आई वॉज लुकिंग एज फार एज आई कुड. जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मैं देख रहा था. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. जो अंडरग्रोथ है, अंडरग्रोथ की मीनिंग जो घासें होगी होती हैं, बुशेस जो होती हैं, तो जहाँ तक उन्हें दिख रहा था, जहाँ तक घासें नहीं थी, जब घास ज़्यादा हो गई तो रोड जो है बेंड हो गया था, तो इसकी वजह से आगे नहीं दिख रहा था. तो जहाँ तक दिख सक रहा था पोएट ने वहाँ तक देखा. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. सो अब ये जो सेकेंड स्टैंजा है वो बताता है कि फाइनली जो स्पीकर है वो चूज़ करता है अदर वाला रोड. क्यों? क्योंकि वो उतना ही अट्रैक्टिव था जितना कि फर्स्ट वाला था. दोनों रोड उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहे थे, बट उनको ऐसा लग रहा था कि जो रोड वो लेने जा रहे हैं उस पर कम लोग चले थे. फ्यूअर पीपल हैज़ यूज्ड इट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर सी. क्योंकि वो रोड अभी भी क्या था, ग्रासी था, बिल्कुल जो घास थी उस पर फ्रेश थी. तो इसकी वजह से इन्हें क्या लग रहा था कि वो जो रोड है उस पर कम लोग ट्रैवल किए हैं. तो इसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि मुझे इसी रोड पर जाने का मन है. क्योंकि इनको लगा ये जो रोड है वो बेटर क्लेम कर रहा है, क्योंकि कोई ज़्यादा लोग उस पर गए नहीं हैं, तो मुझे जाना चाहिए उस रोड पर. ये क्या इम्प्लाई करता है, क्या बताता है कि जो पोएट थे वो बाकियों की तरह नहीं थे, वो थोड़ा सा डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट करना चाहते थे. ओके, so let us see the second stanza. Then took the other as just as fair. और कहते हैं तब मैंने दूसरा वाला रोड चूज़ किया जो कि मुझे एज फेयर लग रहा था, बहुत ज़्यादा फेयर लग रहा था, फेयर इनफ था कि मैं दूसरा वाला रोड चूज़ करूँ. एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम. और कह रहे हैं दूसरा वाला जो रोड था वो बेटर क्लेम भी कर रहा था, कह रहा था कि मुझे यूज़ कर, उसके रीज़नेबल था कि उस पर ट्रैवल करना. क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. जो पहली वाली रोड है उस पर ऑलरेडी बहुत लोग चल चुके हैं, पर ये जो दूसरी वाली रोड है अभी भी ग्रासी है, फ्रेश है, और उस पर भी तो कोई चलना चाहिए. जैसे हम लाइफ में क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव्स या उनके बच्चे जिस रोड पे चल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे, तो सारे लोग उसी रेस में, डॉक्टर इंजीनियर की रेस में भागते रहते हैं. हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या प्रोफेशन है या क्या लाइफ है आगे, व्हाट वी कैन डू. या फिर अगर आपके फ्रेंड्स नहीं, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तो हम भी उसी रोड पे भागते रहते हैं. ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे. पर पोएट ऐसे नहीं थे. पोएट बाकियों से अलग होना चाहते थे. इसीलिए पोएट ने वो जो जिस रोड पे सब चल रहे थे उस पर ना जाके जो दूसरी वाली रोड थी जिस पे कम लोग ट्रैवल किए थे उस पे गए. Though as for that the passing there had warned them really about the same. लेकिन कहते हैं फिर मैं जब थोड़ा सा वहाँ चलकर देखता हूँ, थोड़ा सा पास करता हूँ वहाँ दोनों रोड पे, तो मुझे कैसा लगता है कि दोनों रोड जो है वो रियली सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बोथ आर worn आउट, वो दोनों जो है वो बराबर से चले हुए हैं, ऐसा पोएट को लगता है.
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और फिर नेक्स्ट में कहते हैं कि उस, क्योंकि सुबह का टाइम था और अभी सुबह के टाइम में जो है मुझे लग रहा है कि दोनों के यहाँ एकदम फ्रेश हैं और अभी कोई भी इंसान उस पर चल के नहीं गया है, क्योंकि जो फुट स्टेप्स होते हैं जब आप चलते हैं तो लीव्स पर जो गिरी हुई लीव्स होती हैं उन पर जब पैर के निशान पड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो पोएट होप करते हैं कि मैंने जो पहला वाला रोड है वो किसी और दिन के लिए रख दिया। येट ही नोज़, उनको पता है, ही नोज़ दैट कि एक रास्ता फिर दूसरे रास्ते को लीड करेगा, फिर आगे वो बढ़ते जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, ये अनलाइकली था, इट वॉज नॉट पॉसिबल। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उनको पता था, वो डाउट में थे कि कभी क्या ये वापस आ पाएंगे। सो लेट्स सी दिस स्टैंजा। फर्स्ट, सेकेंड, वी हैव सीन थर्ड। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अभी सुबह का टाइम था, दोनों ही जो रोड थे वो इक्वली बराबरी थे, बराबर ही लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि दोनों ही रोड्स पर अभी कोई ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, क्योंकि लीव्स पे जो पत्ते गिरे हैं उस पर फुट स्टेप्स नहीं हैं, अभी जो पत्ते हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं। Yet knowing how way leads on to way, जानते हैं पोएट, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, सी द एक्सक्लेमेशन मार्क, कहते हैं ओ आई एम थिंकिंग दैट फर्स्ट वन आई कैन कम अनदर डे एंड आई कैन ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड, कह रहे हैं जो पहला वाला रोड है उस पर मैं कभी और आकर ट्रैवल कर लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि ये जानते हैं कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पे पहुंच जाता है, एक डिसीजन जो आप लेंगे उससे आगे आपको एक और डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे कहते हैं एक झूठ के लिए आपको और कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही अगर आप एक अच्छा फ़ैसला लेंगे, एक अच्छा डिसीजन लेंगे, एक अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट द पोएट इज़ टेलिंग, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ योर चॉइस विल डिसाइड योर फ्यूचर। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और ये बहुत डाउट पोएट को इसी बात का दुख है कि इनको नहीं पता कि क्या ये कभी वापस आ पाएंगे, क्या अपनी लाइफ को रिवर्स कर पाएंगे और वापस आकर जो पहला वाला रोड है जो ये अभी छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो लास्ट स्टैंजा है इस पोएट का, इसमें जो पोएट है वो थोड़े दुख के साथ थोड़े साई हैं और इसमें थोड़ा अपना डिसीजन के बारे में बता रहे हैं कि पोएट जो है वो सैटिस्फाइड नहीं थे, जो डिसीजन उन्होंने लिया था उस समय उससे सैटिस्फाइड नहीं थे और उसको रिग्रेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड रहे हों उससे और वो अपनी चॉइस से खुश हों। तो ये जो एंडिंग है वो साई, वो कह रहे हैं कि आई विल बी टेलिंग इट विद अ साई, एक सोच के साथ, गहरी सोच के साथ मैं बताऊंगा कि मैंने ये रास्ता लिया एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, कि लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आया है मेरा इस डिसीजन की वजह से। तो ये साई जो है वो क्या हो सकता है, ये रिग्रेट भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। आई शैल, अभी इनको पता नहीं है, ये कहते हैं कि आज तो मैं ये रोड चूज़ कर ले रहा हूँ, पता नहीं इन फ्यूचर। सी द स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हो सकता हो बहुत एजेस के बाद, बहुत सारे ईयर्स के बाद, हेंस मीन्स आफ्टर, आफ्टर मैनी ईयर्स आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, सोच, गहरी सोच के साथ मैं ये कहूँगा, बताऊँगा, ये स्टोरी नरेट करूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, और क्या बताएंगे कि एक बार ये एक फॉरेस्ट में खड़े होते हैं जहाँ पर ये दो रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रही होती हैं, अलग हो रही होती हैं। एंड आई took the one less traveled by and that has made all the difference, और मैंने वो रूट चूज़ की थी जो क्या थी, कम लोगों ने चूज़ की थी और उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में जो भी है ये उसी डिसीजन की वजह से है। सो एक डिसीजन ने कैसे पोएट की लाइफ में को ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है वो बता रहा है। सो ये रोड के बारे में नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। ऑन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ यू विल गेट टू चॉइसेस, आपको हमेशा दो चॉइस मिलेंगे एंड इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड कौन सा सही है। ये ऑफ कोर्स इट विल बी लाइक you will be making a decision without knowing the result, but still
सोच समझ के फैसले लेने से आप एजेस एंड एजेस हेंस में बैठकर अपनी स्टोरी नरेट करेंगे कि ये सही फैसला था या गलत। दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डाइवर्ज मीन्स वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अंडरग्रोथ जो श्रब्स होती हैं, घास होती हैं। बेटर क्लेम, प्रेफरेबल। वांटेड वेयर मतलब जो अभी वोर्न आउट नहीं हुआ था, कोई उस पर कदम नहीं रखा है। ट्रॉडन मतलब वॉक डाउन, कोई चल के गया है। साई, रिग्रेट विद डीप थॉट। This is the summary of the poem. Point wise it is written over here. You can pause the video and write the summary. It starts with the poet was standing at a place, okay, where two roads diverged. He was sorry that he couldn't travel both the roads. He looked down as far as he could, and he found that the other road was just as fair, and it presented a better claim. Okay, the second road was grassy, and a very few people have traveled, so it wanted wear. The poet had to make a choice, and he chose the second one, and he kept the first one for another day. The poet had a doubt that he would ever get a chance to travel on the first road or not, and the choice which he had made has made all the difference in his life. He'll be telling ages and ages hence after many years. So the poet neither seems to be very happy nor very sad with his choice, and leaves the end open to the reader and their choices. So it depends upon the reader, what the reader decides. आप लोगों को decide करना है. See, it is a human life. Everywhere you will get some problems, but still, what feels right. इसमें ये भी बताया जो पोएट को सही लगा, पोएट को सेकेंड ऑप्शन सही लगा जो कम लोगों ने यूज़ किया था, जहाँ पर ऑलरेडी लोग सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अगर उसी पाथ पे आप भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वही जो उन लोगों ने छोड़ा होगा। पर अगर आप वो रोड लेते हैं जहाँ पर कोई ट्रैवल नहीं किया होगा, तो सारे रिसोर्सेज आपके लिए होंगे जहाँ पे कम लोग जा रहे हैं। तो डिसीजन आपका है कि आप क्या चूज़ करते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे पोएट को फ्यूचर नहीं पता था, लेकिन पोएट को जो अच्छा लगा वो रोड जो उनको समझ में आया सही, उन्होंने उसको जज किया और सेकंड रोड लिया। वैसे ही पोएट एंड में बताते हैं कि ना वो बहुत ज़्यादा खुश है ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली। ह्यूमन लाइफ में आप हम कभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कभी दुखी होंगे। बोथ द सीन यू विल बी फेसिंग। तो क्यों ना डिसीजन सोच समझ के लिया जाए। आइदर वेज यू हैव टू डील विथ। सो पोएट भी यहाँ पर जो एंड है वो रीडर्स पे छोड़ रहे हैं और उनकी चॉइसेस पे। दीज आर द क्वेश्चन। सी दिस इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। रीड द एक्सट्रैक्ट, पॉज द वीडियो एंड रीड इट। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिसीजन डज द स्पीकर टेक ऑफ द फर्स्ट रोड? What decision he takes? He decides to take the second road and leaves the first one for some other day. तो first road के लिए क्या decision लेते हैं कि उसको कभी और travel करेंगे। In leaves no step had trodden black means the roads were intact. There were no marks on the road. What doubt crops up in the speaker's mind? He was in a dilemma. सोच में थे कौन सा road लिया जाए। These are two short answer type questions. You can pause the video and just write it down, read it also, discuss the significance of the title we have already seen. And then second question is describe the two roads the poet found, the author finds. Which road does he choose? This also we have seen. What is the moral presented in the poem The Road Not Taken? पोएम काफ़ी इंस्पिरेशनल है, बहुत ट्रिकी है, और जो डिसीजन मेकिंग है कैसे आप खुद पे रिलाई कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंस को एनकरेज कर रहा है। आप खुद पे रिलाई करिए और आप अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से सोचिए और डिसीजन लीजिए। रीड दिस आंसर एंड राइट इट ऑल्सो। सी देयर इज अ कोड गिवन हियर, चॉइस, चांस एंड चेंज। यू मस्ट मेक अ चॉइस। आपको एक ना एक चॉइस लेनी ही पड़ेगी। यू हैव टू चूज समथिंग टू टेक अ चांस। और तब आप एक चांस लेंगे, और जब आप एक चांस लेंगे योर लाइफ विल नेवर चेंज। अगर आप चांस नहीं लेंगे और योर लाइफ विल नेवर चेंज। अगर आप जैसा है वैसा ही रहने देंगे, अगर आप कोई नया डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ नहीं चूज़ करेंगे, एक चांस नहीं देंगे अपनी लाइफ को, तो यू विल रिग्रेट, क्योंकि लाइफ ऐसे ही रह जाएगी जैसे अभी है। कुछ बेहतर होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू टेक अ चांस, और योर लाइफ विल नेवर चेंज। वरना आपकी लाइफ जैसे की तैसे
रह जाएगी. That's all for this video. I hope you liked it. Also, you understood. That's more important, that you understood it. So, it's a very interesting poem. Just go through once more. If you have any queries or if you have any problem, you can mention it in the comment section also. You can ask it also. Thank you. Have a good day.